Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that in the previous video, I have explained you about lesson 6 and the topic of the lesson was verbs. So, in that video, I have explained you about main verbs and I have said that about helping verbs, which is also called auxiliary verbs. I will explain you in the another video. So, let's see what I will explain you in today's video. So we are doing the syllabus of internal assignment 3. Our subject is English grammar and in today's video I will explain you lesson 9 and the topic is models. So now you all must be thinking that the topic is about models and ma'am is saying that I will explain you about helping verbs. So let me tell you that model is also a type of helping verb. So before understanding that what is model, it is very important to know what is helping verb, what is auxiliary verbs. So in today's video, I will explain you all about helping verbs, all about models, the use of models and how many kinds of models are there. So let's get started. First, let's see what is helping verb. Helping verb is also called auxiliary verb. I have already told you. So let's see the definition. It is used before the main verb to show the different forms of tense, the person and the number of the subject. इसका जो use किया जाता है वो main verb से पहले किया जाता है. जो helping verb होती है, as by the name it is clear that it is helping verb. ये verb की help कर रही है. So ये main verb के पहले आती है और इसका यूज़ किया जाता है क्या दिखाने के लिए कि आपका टेंस जो है वो किस फॉर्म में है, आपका कौन सा पर्सन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पर्सन आपका हेल्पिंग वर्ब आता है एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर भी आपका हेल्पिंग वर्ब आता है. इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा. इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन योर हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लूरल ओनली. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट वन, इट इज रिटन विपुल इज प्लेइंग वायलिन. विपुल क्या कर रहा है? वायलिन बजा रहा है. So what is the main verb? As I told you that action words are main verbs. So playing is the main verb कि वो उसका एक्शन क्या है विपुल का कि वो प्ले कर रहा है, वायलिन बजा रहा है. एंड प्ले से पहले आ रहा है आपका इज, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये प्ले को सपोर्ट कर रहा है और इसके थ्रू पता चल रहा है दैट द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड विपुल जो है वो आपका सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज यू मे प्ले इन द इवनिंग. तुम शाम में खेल सकते हो. सो वॉट इज द मेन वर्ब? द मेन वर्ब इज प्ले एंड वॉट इज कमिंग बिफोर प्ले? मे इज कमिंग बिफोर प्ले. मे इज अ टाइप ऑफ अ मॉडल. सो अबाउट मॉडल I will explain you further in this one video. So let's see the next topic. So next topic is that how many types of helping verbs, which is also called auxiliary verb. How many types of helping verbs are there? So let's see. Helping verbs are of two types. First one is primary auxiliaries, that is be, have and do, and second is modal auxiliaries, that is all models. Okay, so all the models come under modal auxiliaries and be, have and do. Be is, am, are, has, have and do, does. इसका आपका प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस रहता है एंड मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर आपका सारे मॉडल्स आते हैं. ओके, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज? आई हैव टोल्ड यू दैट बी. व्हाट इज बी? सो इज, एम, आर इज बी एंड व्हाट इज हैव? हैज एंड हैव. एंड व्हाट इज डू? डू एंड डज. अब इसका आपका प्रेजेंट टेंस रहता है एंड पास्ट टेंस रहता है. तो बी है आपका इज, एम, आर which is present tense and past tense will become was and were. Second आता है have, present tense is has and have and it will become had into past tense. Next आता है do and does which is present tense and in past it will become did. So आपका model के क्या examples रहते हैं? That all types of model are modal auxiliaries, that is may, might, would, should, can, could. So your chapter is about models only. I will explain you models also. So let's see what is the next topic first of all. So next is I have explained you what is helping verb. So there are two types of helping verbs, that is primary auxiliaries and modal auxiliaries. So first we will discuss about primary auxiliaries. What are primary auxiliaries? So let's see the definition. The verbs be, have and do are called primary auxiliaries which help us to show different tense forms, numbers and the persons of their subjects. They can be used as मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. सो जो आपकी वर्ब्स होती हैं बी, हैव एंड डू. बी आई हैव टोल्ड यू इज, एम, आर. हैव, हैज, हैव एंड डू, डू, डज. ये आपकी कहलाती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ओके, इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हैं जो हेल्प करती हैं हमें क्या दिखाने में? डिफरेंट टेंस फॉर्म्स, कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस पर है, टेंस में है.
ओके आपके सब्जेक्ट का नंबर क्या है और आपका सब्जेक्ट जो है वो उसका पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बिकॉज आपका जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन यूज की जाती हैं एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर यूज की जाती हैं. दे आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. सो सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज होता है. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. इनको आप मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो सेंटेंस में. मेनली दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं ये मेनली हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती हैं, बट समटाइम्स दे कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब. इनको मुख्य क्रिया की तरह भी यूज किया जा सकता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट इट इज रिटन आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक. सो व्हाट इज द मेन वर्ब? द मेन वर्ब इज रीडिंग बिकॉज इट इज एन एक्शन. एंड व्हाट इज कमिंग बिफोर रीडिंग? दैट इज एम. सो एम के थ्रू, एम आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हुआ, इज एम आर बी फॉर्म है. एंड इससे आपको पता चल रहा है दैट द टेंस इज अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड व्हाट इज द पर्सन? द पर्सन इज फर्स्ट पर्सन. आई इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव 5 पेन्स. मेरे पास 5 पेन है. सो व्हाट इज द वर्ब? ओनली वन वर्ब इज गिवन, दैट इज हैव. सो यहाँ हैव जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ, इट इज यूज्ड एज मेन वर्ब. मेरे पास हैं. Okay, so as I told you कि helping verbs are primary auxiliaries which is also called helping verb, they also can be used as main verb. Okay, so let's see the next topic. Next topic is modal auxiliaries. So that is the lesson about modal auxiliaries. There are two types of primary auxiliaries. First I have explained that primary auxiliaries. Second one is modal auxiliaries. So what is modal? Let's see the definition. A modal is a type of auxiliary helping verb that is used to express specific meanings in particular situations like ability, possibility, permission, obligation, etc. So जो modal होता है ये भी आपका एक तरीके का auxiliary होता है, helping verb होता है, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है कोई स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए. लाइक आपकी सिचुएशंस दी गई होती हैं किसी एक पर्टिकुलर समय पर. लाइक आपको एबिलिटी शो करना है, योग्यता, आपको पॉसिबिलिटी शो करना है, संभावना, आपको परमिशन देनी है, आपको ऑब्लाइगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. ऑब्लाइगेशन मीन्स कर्तव्य और परमिशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस, स्वीकृति. ओके, सो इन खास सिचुएशंस को दिखाने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट वन is written she may go on a holiday. वो हॉलीडे पर जा सकती है. सो here may is मॉडल और may यहाँ पर संभावना दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकती है. सेकेंड इज आई मस्ट लीव सून. मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए. सो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर नेसेसिटी शो कर रहा है कि मुझे ज़रूरत है कि मुझे तुरंत ही निकल जाना चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So I have explained you what is modal auxiliary. So let's see how many kinds of modals are there. So let's see the modals. So modals are of different kinds. Let's see may, might, must, ought to, should, would, can, could, shall, will, need to and used to. They all are modals and they are used differently for the situations. इन्हीं सिचुएशंस के अनुसार अलग अलग तरह इस्तेमाल किया जाता है आपका दिखाने के लिए कि क्या पर्टिकुलर सिचुएशन पर आप किस मॉडल का यूज़ करेंगे. दैट आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन द वीडियो. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. सो एज आई हैव सेड दैट मॉडल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू शो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशन. कि मॉडल्स जो होते हैं उनका यूज़ आप अलग अलग सिचुएशन में उनका अर्थ दिखाने के लिए करते हो. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट अ सिचुएशन एंड आई विल एक्सप्लेन दैट विच मॉडल कैन बी यूज्ड ऑन दिस सिचुएशन. ओके, सो फर्स्ट इज परमिशन. परमिशन मीन्स होता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति देना. सो द मॉडल्स यू कैन यूज फॉर परमिशन दैट इज कैन, कुड एंड मे. सो लेट्स सी द मॉडल्स कैन, कुड, मे आर used to ask for and give permissions. So जो मॉडल्स होते हैं कैन, कुड एंड मे, these three models, इनका यूज़ आप परमिशन देने के लिए एंड परमिशन लेने के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो. सो एज यू ऑल नो दैट आप किसी को परमिशन देते भी हैं और आप किसी से परमिशन मांगते भी हैं. ओके, सो थ्रू द एग्जाम्पल्स यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ रिटन यू कैन टेक एज मैनी कुकीज़ एज यू वॉन्ट. तुम जितने कुकीज़ चाहते हो उतने ले सकते हो. सो हेयर व्हाट इज़ द मॉडल? द मॉडल इज़ कैन. सो कैन के थ्रू यहाँ पर आप परमिशन दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को दैट यू कैन टेक द कुकीज़ एज मैनी कुकीज़ एज यू वांट. नेक्स्ट इज कुड आई टेक अ ब्रेक नाउ प्लीज़. क्या मैं एक ब्रेक मीन्स अंतराल ले सकता हूँ. सो हेयर कुड इज़ ऑल्सो अ मॉडल. सो कुड का यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर परमिशन
मांगने के लिए, यू आर आस्किंग फ्रॉम समवन फॉर द परमिशन कि क्या मैं एक ब्रेक ले सकता हूँ. नेक्स्ट इज मे आई गो आउट टू प्ले, क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ. सो हेयर मे इज द मॉडल और मे के थ्रू यू आर आस्किंग द परमिशन. सो through can, could and may you can ask permission and you can give permission. One thing I must tell you that can and could. Can is a model and could is the past form of can. So in short, whenever you have to give permission and when you have to ask for the permission, you will use these three models, that is can, could and may. So let's see the next topic. Next situation is possibility. Possibility means होता है संभावना, that something can be happen, कि किसी चीज़ को होने की कितनी संभावना है. And the model that you can use to show possibility, that is may, might and could. So here may is the model, present tense is may and the past form is might. So let's see what is the use. The models may, might and could are used to indicate possibility. क्या दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है इन मॉडल्स को? पॉसिबिलिटी, संभावना. So through the examples you will understand it better. First here it is written there may be some biscuits left in the tin. Tin means डब्बे में कुछ बिस्किट बचे हुए हो सकते हैं. So may is the model that is showing possibility, कि ऐसी संभावना है कि कुछ डिब्बे में बिस्किट जो है वो बचे हुए हो सकते हैं. Next is it might rain today afternoon. आज दोपहर में बारिश हो सकती है. So might यहाँ आपका क्या कर रहा है? संभावना दिखा रहा है that it might rain. So what is the difference between may and might? May you can also use for possibility and might also, but when there is less possibility, जब किसी चीज़ की कम संभावना होती है तब हम might का यूज़ करते हैं. So it might rain today afternoon means less possibility है कि आज दोपहर में बारिश हो सकती है. Next is the book could be on that shelf. जो book है वो उस shelf पर हो सकती. नेक्स्ट सिचुएशन इज एडवाइस एंड ऑफर. एडवाइस मीन्स होता है किसी को सलाह देना. ऑफर मीन्स आप सामने से किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं. एंड द मॉडल दैट यू कैन यूज फॉर एडवाइस एंड ऑफर, दैट इज शुड, वुड, कुड हैव, शुड हैव, कुडंट हैव, शुडंट हैव. कुड नॉट हैव हम अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं दैट विल बिकम कुडंट हैव एंड शुडंट हैव. सो व्हाट इज द यूज? द अबव मॉडल्स आर यूज टू गिव एडवाइस और टू मेक एन ऑफर. तो ये जो मॉडल्स हैं आपके जो बताए हैं ऊपर, दे कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग द एडवाइस. आप किसी को सलाह देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एंड अगर आप किसी को कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे. तुम्हें बारिश के दिन में अम्ब्रेला जो है वो अपने साथ कैरी करना चाहिए. सो व्हाट इज द मॉडल? द मॉडल इज शुड एंड हेयर यू आर गिविंग एडवाइस टू अ पर्सन कि बारिश के दिन में तुम्हें अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए. सो हेयर एडवाइस यू आर गिविंग टू समवन. नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट ईद विद अस दिस ईयर. क्या तुम हमारे साथ इस साल ईद सेलिब्रेट करना चाहते हो? सो हेयर व्हाट इज़ द मॉडल? वुड इज़ द मॉडल और आप किसी को ऑफर कर रहे हो सामने से कि क्या तुम हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करना चाहते हो. नेक्स्ट इज ही कुडंट हैव टॉक टू यू विथ सो मच नॉइज इन द बैकग्राउंड. वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता अगर बैकग्राउंड में पीछे से इतना ज़्यादा शोर आ रहा हो. सो हेयर कुडंट मीन्स कुड नॉट हैव. ओके, सो यहाँ पर क्या है? एक एडवाइस है कि आप तुमसे वो बात नहीं कर सकता अगर बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा शोर आएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता एंड पॉसिबिलिटी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, दैट इज संभावना. एबिलिटी मीन्स इफ द पर्सन इज हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग, अगर किसी व्यक्ति में योग्यता है कुछ कर पाने की. सो विच मॉडल वी विल यूज टू शो एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी? दैट इज कैन एंड कुड. Can is the present tense and could is the past tense. So the same thing is applied here also. Can is used to show ability when we have to show less ability. जब हमें कम जो है वो दिखानी होती है ability, तब हम could का use करते हैं. So what is the use? These models are used when something is possible और somebody has the ability to do something. इन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ पॉसिबल होती है, जब कोई चीज़ संभव होती है, एंड व्हेन जब किसी व्यक्ति में एबिलिटी होती है, जब किसी व्यक्ति में संभावना होती है कुछ करने की. मीन्स ये व्यक्ति हैज़ द एबिलिटी, इस व्यक्ति में ये योग्यता है कि इस काम को ये कर सकता है. व्हाट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल? ही कैन ईजीली कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट ऑन हिज ओन. वो अपना प्रोजेक्ट आसानी से अपने आप कंप्लीट कर सकता है. सो व्हाट इज़ द मॉडल? द मॉडल इज कैन एंड कैन इज शोइंग द एबिलिटी कि उसके अंदर ही मीन्स
वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, कि उस बॉय के अंदर एबिलिटी है कि वो अपना प्रोजेक्ट अपने आप ही आसानी के साथ कंप्लीट कर सकता है. सेकेंड इज ही कुड स्विम टू द एंड ऑफ द पूल. कुड इज द मॉडल, वो पूल यानी जो स्विमिंग पूल है उसके दूसरे सिरे तक आसानी से तैर कर जा सकता है, तैर कर जा सकता है. सो कुड इज द मॉडल. सो कुड हियर, कुड इज शोइंग लेस एबिलिटी, कि वो जा तो सकता है बट द एबिलिटी इज नॉट टू मच, कि वो कर ही सकता है. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट सिचुएशन इज रिक्वेस्ट. फॉर द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना किसी व्यक्ति से. अब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करेगा, आप किसी से प्रार्थना करेंगे. Request, to show the request we can use the model that is can, could, will and would. Will is the present tense and would is the past form of will. These models are used to make some kind of request. ये जो models होते हैं इनका use हम करते हैं request करने के लिए. So what is the example? Let's see. Can you tell me the direction to his house? क्या तुम मुझे उसके घर की डायरेक्शन यानी उसके घर की दिशा बता सकते हो कि उसका घर किस दिशा में है. सो हेयर कैन आपने मॉडल का यूज़ किया और कैन के थ्रू आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको किसी व्यक्ति के घर का रास्ता बता दे. नेक्स्ट इज वुड यू बाय मी दैट येलो ड्रेस. क्या तुम मेरे लिए वो पीले कलर की ड्रेस खरीद सकते हो. सो हेयर द मॉडल इज वुड, और वुड के थ्रू आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम मेरे लिए ये खरीद सकते हो. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट सिचुएशन इज सजेशन. सजेशन मीन्स होता है किसी को राय देना, सलाह देना. Okay, so the model that you can use to give suggestion to someone, that is can, could and might. These models are used to make suggestions. तो ये जो 3 models हैं, they are used to make suggestions. किसी को किसी भी तरीके की सलाह देने के लिए यूज़ किए जाते हैं. Let's see the examples. First example is you might talk to your teacher for extra classes. तुम अपनी टीचर से एक्स्ट्रा क्लास यानी अतिरिक्त कक्षा के बारे में बात कर सकते हो. So what is the model? The model is might. तो यहाँ आप किसी व्यक्ति को you are suggesting to a person कि आप अपने टीचर से एक्स्ट्रा क्लास को लेकर बात करो. नेक्स्ट सेंटेंस इज यू कुड कम बाय द इवनिंग इफ़ यू आर फ्री. तुम शाम तक आ सकते हो अगर तुम फ्री हो तो. व्हाट इज़ द मॉडल? द मॉडल इज कुड, और यहाँ पर क्या आप सजेस्ट कर रहे हो किसी व्यक्ति को कि अगर तुम शाम में फ्री हो, इफ़ यू आर फ्री इन द इवनिंग सो यू कैन कम, तो तुम आ सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज यू कैन टेक अ बस और अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट. तुम एयरपोर्ट जाने के लिए बस या टैक्सी ले सकते हो. सो हेयर थ्रू कैन यू आर सजेस्टिंग टू अ पर्सन कि या तो तुम कि whether the person can take a taxi or whether the person can take a bus to go to the airport. Let's see the next topic. Next topic is necessity and obligation. Necessity means होता है आवश्यकता and obligation means कर्तव्य. So when you have to show these 3 situations, so which model you will use? The model that will be used on these situations, that is should, ought to, must, need to. These 3 models. So these models are used when something is necessary to do. जब किसी काम को करने की आवश्यकता होती है तब इन तीनों मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. What is the example? Let's see. First here it is written he ought to take his studies seriously. उसे अपनी स्टडीज़ यानी अपने अध्ययन को सीरियसली यानी गंभीरता से लेना चाहिए. सो ought to के थ्रू here you are showing obligation. Obligation means कर्तव्य. Being a student, it is his obligation to take his study seriously. नेक्स्ट इज शी मस्ट हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन नाउ. उसे मेरी मदद करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन से, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए. सो व्हाट इज़ द मॉडल? द मॉडल इज मस्ट, एंड मस्ट के थ्रू यहाँ यू आर शोइंग नेसेसिटी, आवश्यकता दिखा रहे हैं. नेक्स्ट इज शी नीड्स टू टॉक लाउडर इफ़ द एंटायर क्लास हैज़ टू हेयर हर. उसे तेज़ बोलने की ज़रूरत है अगर वो चाहती है या पूरा क्लास उसे सुन सके. सो व्हाट इज़ द मॉडल? द मॉडल इज़ नीड टू, और नीड टू इज शोइंग नेसेसिटी ओनली. क्या ज़रूरत है? तेज़ बोलने की ज़रूरत है. इफ़ शी वॉन्ट्स दैट द होल क्लास कैन हेयर हर, सो शी नीड टू स्पीक लाउडर. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन एंड एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. प्रोहिबिशन मीन्स होता है निषेध, जब किसी कार्य को करने के लिए मना किया गया होता है, दैट इज प्रोहिबिशन. समटाइम्स व्हेन यू ड्राइव तो यू सी दैट at some places it is written that prohibition means that place is निषेध, वहाँ पर जाना मना होता है. so that is prohibition, किसी काम को करने की मनाही. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी. अभी नेसेसिटी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जो आवश्यकता होती है, किसी काम को ज़रूरत होती है. इफ़ देयर इज़ नो नेसेसिटी यानी किसी भी काम को करने की जब ज़रूरत नहीं है. सो विच मॉडल विल बी यूज्ड ऑन दिस सिचुएशन? दैट विल बी नीड नॉट, शुड नॉट, आउट नॉट, मस्ट नॉट.
सो हेयर वी आर शोइंग द निगेटिविटी, हम निगेटिविटी दिखा रहे हैं. प्रोहिबिशन मीन्स जाने की मनाही है, काम करने की मनाही है. एंड एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी यानी ज़रूरत है ही नहीं करने की. सो हेयर वी हैव यूज्ड नॉट विद ईच मॉडल. दैट नीडंट मीन्स नीड नॉट, shouldn't, should not, ought not and must not. These models signify prohibition and absence of need. ये मॉडल्स क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या दर्शाते हैं कि प्रोहिबिशन मनाही है एक्शन को करने की, एंड की ज़रूरत भी नहीं है, या तो बिल्कुल मना हो सकता है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, और एब्सेंस ऑफ नीड यानी ज़रूरत नहीं है करने की. सो व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? आई नीडेंट हैव कम सो अर्ली. मुझे जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है. सो नीड नॉट, नीड के साथ हमने इफ़ आई विल राइट आई नीड हैव कम सो अर्ली, आई नीड टू हैव कम सो अर्ली, सॉरी, मुझे जल्दी आने की ज़रूरत है. इफ़ आई विल यूज़ नॉट आफ्टर नीड टू, तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स हो जाएगा कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, तो मुझे जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज़ यू ऑट नॉट पुल द लीव्स ऑफ द प्लांट. तुमको प्लांट यानी पौधों की पत्तियां तोड़ने की ज़रूरत नहीं है. नेसेसिटी सॉरी, यहाँ ज़रूरत नहीं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोहिबिशन, यानी प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनको तोड़ना मनाही है, उनको तोड़ने की मनाही है. नेक्स्ट इज़ यू मस्टंट टॉक सो लाउडली इन द क्लासरूम. तुम्हें कक्षा में तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है. सो मस्टंट से क्या यूज़ हो रहा है कि एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन, यहाँ पर निषेध दिखाया जा रहा है कि मनाही है, क्लासरूम में आप बहुत तेज़ बात नहीं कर सकते. सो दीज वर द सम मॉडल्स एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द यूज़ ऑफ ईच मॉडल, दैट ऑन विच situation you can use a particular model. I hope you all have understood all these models, about auxiliary verbs also, about model also. If still there is any confusion, so you can ask in the Zoom meeting, that is between 11 a.m. to 11:30 a.m. and on the WhatsApp, that will be 11:30 a.m. to 12 p.m. So I'll meet you in the another video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.